first try to understand what is this topic is all about and why we are studying this. Okay, so isoenzymes, like I have told you, आप लोगों को पता है कि enzymes होता क्या है. Enzymes are the proteins, excuse me, which catalyzes any biochemical reaction to produce the final product. Okay, so enzyme is nothing but it will act on a reactant and it will convert that reactant to a product. We all know that. Okay, we have studied a lot about this one enzyme. Then what is this isoenzymes? Isoenzymes, you can say they are the same enzymes of that particular class. For example, I give you. I just want to make you understand what is this isoenzyme. Hexokinase. I gave an example of hexokinase. This hexokinase we have studied in glycolysis. The first enzyme of glycolysis is your hexokinase, which convert the glucose to glucose 6-phosphate. That's a phosphorylation reaction is going on. Means on a glucose molecule, the phosphate group is coming and getting attached. There is one more enzyme called glucokinase. ये इसका भाई है, हेक्सोकाइनेज का भाई है. ठीक है, तो क्या करता है ये एंजाइम, जो हेक्सोकाइनेज है वो कम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज पे काम करता है. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज जो है वो कम रहती है, देन दिस हेक्सोकाइनेज विल वर्क. Whereas when the glucose concentration has exceeded a particular concentration, then this glucose kinase will start functioning. Until unless it will be sleeping only. So whenever the hexokinase is not able to convert, because there is a lot of concentration of glucose is there inside a particular tissue where this hexokinase there is. The example is your liver. Okay, जब लीवर में ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन कम है तब ये एंजाइम जो है हेक्सोकाइनेज काम करेगा. बट एक कभी कभार ऐसी चीज आती है कि बहुत मीठा खा लेता है इंसान, मतलब 10-12 रसगुल्ले खा गया, 10-12 गुलाब जामुन खा गया, 3-4 कटोरियां गाजर का हलवा खा गया, सब खा गया वो. तो दैट टाइम व्हाट विल हैपन, द ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन इज शूट अप. So that time this glucokinase, which is an isoenzyme of hexokinase, will come and it will start converting the glucose to glucose 6-phosphate, or you can say this glycolysis reaction will start proceeding. I hope you understood what is this isoenzyme. The isoenzyme, you can say it says brother sisters of your enzymes. Whenever these enzymes require some help, these enzymes will come and it will help them. Hope you understand. Yes or no? समझ में आया? Yes, sir. Just to make me more you understand, these are the isomers. अभी एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ोगे, मैं इसलिए आपको इतना ज्यादा नहीं समझा सकता क्योंकि ये केमिस्ट्री का भी पार्ट आ जाता है. So you can just understand this isoenzymes, they are the brother sisters of your enzymes. So we'll start with that one only. With that note we'll start. What is this enzyme? So we'll be studying about introduction to isoenzymes and their therapeutic and diagnostic application. First I'll make you understand what is an isoenzyme, and now we'll be seeing ये कभी कभार जो एंजाइम्स होते हैं ये डायग्नोसिस में काम आते हैं. कुछ ऐसे कैंसर्स होते हैं, कुछ ऐसी लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज होती है, तभी इन आइसोएंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन जो होती है ब्लड में बढ़ जाती है. तब ब्लड सैंपल लेके डिटेक्ट करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि इस पेशेंट को ये बीमारी और है. ठीक है, तो हम ये इसको देखेंगे, इसकी डायग्नोस्टिक एप्लीकेशंस. So as for your syllabus, as per your second year syllabus, you guys need to study about total only three isoenzymes. There are so many different enzymes are there, but you guys need to. Who is this crazy Nazir boy? So introduction to isoenzymes, we'll be seeing properties of isoenzymes, and we'll be studying about three major class of isoenzymes. Okay, the main one are LDH, that is your lactate dehydrogenase, creatine phosphokinase, alkane phosphatase. So these are the things, these are the enzymes which we will be studying in detail about these isoenzymes. So total three isoenzymes are there which we will be studying. Okay. So coming to the definition of isoenzymes,
So isoenzymes, or you can say isozymes, are multiple form of same enzymes. Okay, I have given you an example of this one hexokinase. So hexokinase का एक और फॉर्म है, एक और इसका फॉर्म वो तब जाके ये काम करता है. तो क्या है, isoenzymes are multiple form of same enzyme that catalyzes the same chemical reaction. जो एंजाइम एक पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन को कैटलाइज कर रहा है, these isoenzyme will be catalyzing the same chemical reaction only. So they are the multiple forms, or you can say they are the isomers for your understanding. So but the thing is, the one difference is there. They differ chemical and physical properties. Like your hexokinase and glucokinase. Glucokinase is an isoenzyme of your hexokinase, but glucokinase differ in physical as well as the chemical properties. What are those? First, your electrophoretic mobility. There is a test called electrophoresis where when you put your sample there, because of the electric field, the sample will start moving towards the charged electrode. Okay, so that's the mobility, like how fast it can travel. So if you put your hexokinase and the glucokinase on this particular plate, I'll show you the plate how it will look. It is like a plate only. It is like this plate. Suppose this is a plate of electrophoretic. You will put your sample here and you will put your electric charge on both the ends. Because of this electric charge, these both sample will start traveling. Okay, because of this electric field, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं. ये अगर मान लो एक सैंपल जो है इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है तो ये धीरे मूव करेगा, और एक का अगर कम है तो तेजी से मूव करेगा. So these isoenzymes, they'll differ in your electrophoretic mobility, kinetic properties. They have different amino acid sequence and amino acid compositions. Okay. So these are the 6 properties which they differs. The isoenzyme. These are the 6 properties which they differs. First, yours for electrophoretic mobility. The isoenzymes of lactodehydrogenase have different electrophoretic mobility. So we will be studying about these isoenzymes, lactodehydrogenase. Okay, इसके जो isoenzymes होते हैं, they have this electrophoretic mobility. They have different electrophilic mobility. मतलब इसके जो isoenzymes, total 5 isoenzymes are there for this lactate dehydrogenase. So because of that, because of this, all the 5 have different electrophoretic mobility. Then second property is your heat stability. The alkyne phosphate isomerase are either heat liable or heat stable. So this is the third type of your isoenzyme which we need to study. So what is saying that alkyne phosphate isoenzymes can be heat sensitive also or heat resistant also. Heat liable means they are sensitive to heat. In presence of heat, they'll get denatured. Or the other isoenzymes, they will be heat stable. So one isoenzyme will be heat stable, one enzyme will be heat unstable. Okay. So if you see like isoenzymes की भी अलग अलग है. एक होता है ना, 2 भाई है, एक भाई को गर्मी ज्यादा लगती है, एक भाई को सर्दी ज्यादा लगती है, वैसे वाली बात होगी. तो 2 भाई बैठे हैं, ये दोनों भाई को आपने एसी के रूम में बैठा दिया. एक भाई को एसी का जो मतलब एसी चल रहा है उससे कोई दिक्कत नहीं है, एक भाई को एसी से दिक्कत आई, ऐसे कहने का मतलब. तो हीट स्टेबिलिटी क्या है, एक एंजाइम जो है हीट के स्टेबल रहेगा, एक एंजाइम हीट के सेंसिटिव रहेगा, वैसे. देन कमिंग टू द इनहिबिटर्स. ओके, inhibitors. An inhibitor can inhibit only one isoenzymes of an enzyme, example acid phosphatase. So inhibitors can be your drug, can be your poison, anything. So it can inhibit only one isoenzymes of an enzyme. Okay, so Km value is nothing but how the fast your what we can say. Km value is a physical parameters. So the glucokinase and hexokinase, both of them differs in the Km value. The cofactors, the isoenzymes have different cofactor, that is your mitochondrial isocitrate dehydrogenase required NAD+. जो माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम है, जो माइटोकॉन्ड्रिया में काम करता है, कौन सा, isocitrate dehydrogenase, which required NAD+.
एंड इसी का सिस्टोलिक जो सिस्टोलिक एंजाइम है इट रिक्वायर NAD+. Tissue localization LDH1, that is your lactate dehydrogenase 1 is present in heart, whereas LDH5 is present in muscles. Okay, so I have told you lactate dehydrogenase has 5 isoenzymes. Okay, so LDH1 there is a numbering LDH1 2 3 4 5. So LDH1 जो होता है वो present होता है heart के अंदर, वहीं LDH5 is present more in the muscles part. Then coming to antibodies for keratin, keratin kinase, these isoenzymes can be founded only by specific antibodies. Now we'll be studying about first example of isoenzyme, that is your lactate dehydrogenase. So we have studied in the classification and nomenclature किस तरह से इनका नामकरण किया गया है. इसका EC दे रखा है, एंजाइम क्लासिफिकेशन इज, और इसका नंबरिंग क्या है 1.1.2.27. उसका नाम क्या है लैक्टेट NAD+, ऑक्सोरिडक्टेज LDH. इसका पूरा नाम. मॉलिक्यूलर वेट कितना है 134 किलो डाल्टन. ये टेट्रामर है, मतलब इसके 4 डिफरेंट फॉर्म, मतलब मदर को मिला के 4 फॉर्मूला, टोटल 5 रहते हैं ये. ठीक है. अब लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस व्हाट इट विल वर्क. तो लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस इट विल कन्वर्ट द लैक्टेट टू द पायरुवेट. तो लैक्टेट एंड पायरुवेट कहाँ पढ़ा था ग्लाइकोलाइसिस के अंदर. अगर एरोबिक में होता है तो उसको बोलते हैं, एरोबिक कंडीशन में हो रही है तो बोलेंगे पायरुवेट बनेगा, एनारोबिक में हो रहा है तो लैक्टेट. तो ये लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस है व्हिच विल कॉज द कन्वर्जन, इंटर कन्वर्जन ऑफ लैक्टेट एंड द पायरुवेट. ओके, so this is the function of this particular enzyme. Okay, but this enzymes, okay, what is happening I'll tell you now. The story, now you understand the story of this one. हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट सेल्स होते हैं. हार्ट का सेल, जिसको हार्ट का सेल अलग रहेगा, किडनी का सेल अलग रहेगा, लिवर का हिपेटोसाइट रहेगा, किडनी का नेफ्रॉन्स रहेंगे, ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स हैं, हार्ट के अंदर कार्डियक सेल्स हैं, आपकी मसल्स के अंदर स्केलेटल मसल्स हैं, एपिथेलियल सेल्स हैं, इतने सारे सेल्स हैं. ठीक है. तो हर सेल्स के अंदर सेम एंजाइम काम नहीं कर सकता है. क्यों? उसकी अलग अलग बनावट है. हर सेल अलग अलग क्यों है हमारे बॉडी के अंदर? उसकी जो एनाटॉमी, उसका फिजियोलॉजी, जो उसका फंक्शन है वो अलग है, उसकी बनावट अलग है. तो एंजाइम, क्योंकि ग्लूकोज तो हमें हर जगह चाहिए, हमारी बॉडी को ग्लूकोज तो हर जगह चाहिए, नहीं तो काम कैसे करोगे आप लोग, है ना. इंसान काम कैसे करेगा. तो इस एंजाइम्स को भी थोड़ा मॉडिफाई किया गया है. काम तो उसका वही है, एंजाइम्स का काम तो वही करेगा, वो बस को थोड़ा सा ट्विस्ट करके चेंज किया गया है. जब इसकी जो अगर आप जीन्स पढ़ोगे, इसके जो पढ़ोगे, बहुत डेप्थ में है बच्चों. ये जो टॉपिक है ये बहुत वास्ट है, ये छोटा टॉपिक नहीं, इट्स अ वेरी वास्ट टॉपिक. एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस आइसोएंजाइम इज टू फाइंड सो मेनी लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज. कैंसर्स के बारे में पता चल जाता है, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो रहे हैं बॉडी के अंदर, कोई बच्चा पैदा हुआ है उसके अंदर जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, उसके बारे में पता चल जाता है. अगर मान लो कि कोई पर्सन है जिसको हार्ट अटैक आने की चांस है, तो उसका ब्लड टेस्ट करके पता चल जाता है कि हाँ ये हार्ट अटैक का, उसको आगे फ्यूचर में हार्ट अटैक आ सकता है नहीं आ सकता है. सो दीज आर द आइसोएंजाइम्स व्हिच विल गिव द आइडिया कि whether this living organism is living a healthy life or it is having some any clinical problems. Okay, got it now? So yes, this lactate dehydrogenase will convert the lactate to pyruvate, or you can say the pyruvate will get converted to lactate. So this is the enzyme which is responsible for the conversion of this particular chemical reaction. If you see the normal values, okay, serum क्या है? The blood. If you take out the blood and if you want to quantify this lactate dehydrogenase, उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है, सीरम क्या है? ब्लड निकालो, ब्लड के अंदर सीरम और प्लाज्मा होता है, सबने पढ़ाई है HT के अंदर. तो सीरम के अंदर इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन रहती है वो 100 to 200 UL रहती है. CSF क्या होता है? CSF होता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड. सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या होता है? आपकी जो ब्रेन, जो आपकी स्केलेटल मसल, ये ऊपर का जो स्कल है और जो अंदर ब्रेन है, उसके बीच में एक लिक्विड भरा हुआ होता है जो एक शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है, न्यूट्रिशन के लिए को सप्लाई करने के अंदर काम करता है. तो उसके अंदर भी इसकी मात्रा होती है 7 to 30. यूरिन जो पेशाब होता है उसके अंदर ये अगर उसको एनालाइज करें तो 40 to 100 UL में आता है. अब आते हैं LDH के आइसोएंजाइम्स में. इसके टोटल मैंने बताया कितने होते हैं बच्चों. देयर आर टोटल 5 आइसोएंजाइम ऑफ LDH. LDH शॉर्ट फॉर्म है, बोलते पूरा नहीं बोला जाता है. लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस थोड़ा बड़ा नाम है, हम सब छोटा कर देते हैं. ठीक है ना, इसके नाम छोटा कर दिया. तो LDH 1 2 3 4 5
ठीक है। LDH1 जो होता है हीट रेजिस्टेंट होता है, LDH2 भी हीट रेजिस्टेंट होता है, लेकिन LDH4 जो है वो हीट लायबल है, मतलब हीट में सेंसिटिव है। फिर LDH5 इज और हीट रिलायबल एंड इनहिबिटेड बाय यूरिया। ठीक है, आपको ये चार पांचों याद होनी चाहिए। आइसोएंजाइम्स क्या है ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, कंपोजिशन आपको याद नहीं करने कंपोजिशन। फिर इलेक्ट्रोफोरेटिक माइग्रेशन, मतलब LDH जो है सबसे तेज भागेगा। अगर मान लो ये मेरे पास एक, अगर मैं पांचों को अगर मैं 1 2 3 4 5, आई होप यू कैन सी द कॉपी नाउ। अगर आप ये कॉपी देख पा रहे हो, you guys can see this copy। Yes, sir. Yes, sir. तो अगर मैं पांचों एंजाइम्स को यहाँ पर ऐसे लगाऊं और बोलूं दौड़ लगाओ, दौड़ लगानी है, तो इसमें जो LDH1 है वो सबसे पहले जीतेगा। LDH1 2 3 4 5 लगाए तो LDH1 सबसे पहले रेस जीत जाएगा यहाँ तक अगर उसको पहुंचना है, और LDH5 सबसे पीछे आएगा। एक इलेक्ट्रोफोरेटिक एक ऐसी प्लेट होती है, हमारी लैब्स में होती है, अगर लैब्स में जाओ तो ये दोनों प्लेट के यहाँ पर एक एक यहाँ पे क्लिप लगाते हैं, इलेक्ट्रिक क्लिप, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक क्लिप लगाते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पर पांचों को स्पॉट किया जाता है। आप बोलते जाओ दौड़ लगाना, जैसे ही कलर ऑन करोगे तो पांचों दौड़ेंगे, उसमें LDH1 सबसे पहले पहुंच जाएगा, वहीं LDH5 सबसे पीछे आएगा। ठीक है, दिस इज योर इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी व्हिच यू विल बी स्टडी इन योर फर्दर क्लासेस। Okay, so you guys need to learn about where these isoenzymes are present. LDH1 is present in myocardial, LDH2 is present in myocardial, RBC, kidney। LDH3 जो होता है ब्रेन में होता है, LDH4 जो होता है लंग एंड स्प्लीन में होता है, और LDH5 स्केलेटल मसल एंड लिवर में होता है। एलिवेटेड का मतलब होता है किस कंडीशन में, किस बीमारी में ये बढ़ जाता है। अगर मान लो किसी को हार्ट अटैक की संभावना है कि इस पर्सन को हार्ट अटैक आ सकता है, तो उसमें अगर उसका ब्लड टेस्ट कराओगे तो आपको LDH1 की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा मिलेगी सीरम के अंदर। हमने सीरम की कॉन्सेंट्रेशन कितनी पड़ी थी, 100 से 200 पड़ी थी। अगर आप उसका ब्लड टेस्ट कराओगे तो उसका मायोकार्डियल इन्फेक्शन का अगर वो पेशेंट है, अगर आ सकता है, तो उसका LDH1 बढ़ा हुआ मिलेगा। ठीक है, आया समझ में। वैसे ही सबकी अलग अलग दे देखिए, LDH2 कहाँ पड़ेगा, किडनी डिजीज में मिलेगा या मायोब्लास्टिक एनीमिया में मिलेगा। LDH3 जो है ल्यूकीमिया या मैलिग्नेंसी में मिलेगा, कैंसर के जो केसेस होते हैं, ल्यूकीमिया ब्लड कैंसर होता है उसमें बढ़ावा मिलता है। फिर LDH4 होता है पल्मोनरी इन्फेक्शन होता है, जब फेफड़ों में कोई इन्फेक्शन हो जाए तो उसमें मिलेगा। LDH5 जो होता है स्केलेटल मसल्स एंड लिवर डिजीज जो होती है उसके अंदर LDH5 होता है। ठीक है, अब आते हैं आगे चलते हैं। So lactate dehydrogenase के बारे में थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। Lactate dehydrogenase is an example in which two duplicate genes has become specialized to different tissues. Okay, the isoenzymes are also differentially expressed in different developmental stage. अब मैं इसका समझा देता हूँ कैसे होता है। ये पांच पढ़े, पांच जो आप पढ़ रहे हो आइसोएंजाइम, पांच कैसे आ रहे हैं, इनकी जेनेटिकली जो कोडिंग होती है उसमें डिफरेंस आता है। तो काम तो इनका एक ही है, पांचों नॉर्मल है, पांचों खराब नहीं है, पांचों नॉर्मल चीजें हैं बॉडी के लिए। लेकिन इनकी जब बनती है बॉडी के अंदर, जब इसका ये बनाए जाते हैं एंजाइम्स, एंजाइम्स क्या है, अमाइनो एसिड ही तो है। प्रोटीन, प्रोटीन क्या है, अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड कहाँ बनता है, आपके न्यूक्लियस के अंदर। मैंने पढ़ाया था जब ट्रांसक्रिप्शन था, आपको बताया था कैसे बन के आता है, जेनेटिक कोड कैसे रीड होता है, उससे अमाइनो एसिड बनता है, वीडियो भी दिखाया था आपको। अब ये जो एंजाइम है, देखो इस एंजाइम की कितनी सुंदर बात है। अब जिसमें एग्जांपल ले रखा है एक छोटे बच्चे का, बच्चा जो होता है, अगर सपोज करो छोटा बच्चा है माँ की पेट में, ठीक है, 9 मंथ की प्रेगनेंसी होती है, जब बच्चे की जो हार्ट रेट आ जाती है, हार्ट रेट तो तीसरे चौथे महीने में आ जाती है, बच्चा जो होता है दूसरे महीने या तीसरे महीने में बच्चे की हार्ट बीट स्टार्ट हो जाती है। लेकिन क्या है, वो भी सांस नहीं ले सकता क्योंकि मम्मी की कोख में, मदर वूम के अंदर है। तो वो क्या है, अभी हार्ट जो है वो अभी एनारोबिक कंडीशन में काम कर रहे हैं क्योंकि उसके फेफड़े काम नहीं कर रहे। जैसे बच्चा बाहर आता है तो उसको रोता क्यों है, क्योंकि उसके लंग्स काम करते हैं। वो रोता है इसलिए, तो उससे क्या होता है, उसकी जो लंग्स में जो उसकी एयरवेज में जो फंसा हुआ होता है वो सब क्लियर आउट होता है, तब जाके बच्चा ब्रीथ आउट करता है। ठीक है, बच्चे की माँ की पेट कोख में जब तक तो माँ से जो ऑक्सीजन आ रही है उससे काम कर रहा है, जब बाहर डिलीवरी होके आता है तब काम करता है। अब देखो उसमें कैसे स्टेजेस चेंज हो रही है। LDH क्या है, ये आपके हार्ट मसल्स में होता है, आपके लिवर में होता है, आपकी किडनी में होता है, आपके ब्रेन में होता है। अब देखो इसका हार्ट का एग्जाम्पल दे रखा है। ठीक है, before the birth the heart is more anaerobic। anaerobic means in absence of oxygen, एयर नहीं है अंदर, है ना। प्रेग्नेंट वुमेन के पेट में हवा नहीं होती है, वो मदर जो ऑक्सीजन बाहर से ले रही है उससे पहुंच रहा होता है। कंपेयर विथ एडल्टहुड, जब बच्चा
Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So before birth, the heart is more anaerobic compared with adulthood. Indeed, before birth, जब बच्चा पैदा नहीं होता है, the main isoenzymes in the heart is M4. फोर्थ कैटेगरी का जो एंजाइम है वो होता है. When and with time it switches to M3 at birth. जब बच्चा पैदा होता है तो एंजाइम अपना फॉर्म चेंज करता है to H2, M2 and HM3 at first year after the birth and M3 and MH4 after 2 years. तो ये हर एंजाइम जो है एक स्टेज पे अपने आप को चेंज कर रहा है. Okay, so now you understand the enzyme function is same only. lactate को pyruvate में कन्वर्ट करना, pyruvate को lactate में कन्वर्ट करना, but कंडीशन देखो इंसान के बच्चे की चेंज है. पहले तो एनारोबिक कंडीशन में था माँ के पेट में, लेकिन माँ के पेट के बाद जब वो बर्थ हुआ, उसकी डिलीवरी हुआ, बाहर आया, उसने सांस लेना स्टार्ट किया, फिर वो बड़ा होता है तो उसके एंजाइम्स चेंज होते हैं बच्चों. एंजाइम्स का काम तो वही, तभी इसको आइसो एंजाइम बोला गया. भाई बहन है उसके, समझाने के लिए, कभी बोलना मत, मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ. ये आइसोमर्स होते हैं सब. ठीक है, अब चलते हैं आगे. 5 के बाद और वैज्ञानिकों ने और खोज करी थी, उनको 2-3 तरह के और मिल गए. 6th भी मिला, उसको LDH-X नाम दिया गया. एक 7th और मिल गया तो उसको LDH-6 के नाम से जाना गया. हमें तो 5 के बारे में बहुत अच्छे से पता है, लेकिन बाद में और वैज्ञानिकों ने इसकी खोज करी तो उनको 2 और फॉर्म मिल गई. उसको 6th आइसोमर एंड 7th आइसोमर बोला गया. अब क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ LDH. क्लिनिकल सिग्निफिकेंस मतलब हमारे इंसानों के लिए इसका महत्व क्या है. ठीक है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन के अंदर हार्ट अटैक आने वाला है तो आपको पता चल जाएगा LDH1 बढ़ा हुआ मिलेगा ब्लड के अंदर कंपेयर टू LDH2. LDH1 की जो कॉन्सेंट्रेशन है, जो 100 to 200 UL होती है, वो बढ़ा हुआ मिलेगा. तो इसकी ये महत्व आ गया, तो वो डॉक्टर को पता चल जाता है कि भैया इसको हार्ट अटैक आने वाला है, इसको एडमिट कर लो. अभी इमरजेंसी केस आता है तो सबसे पहले ब्लड टेस्ट कर लेता है डॉक्टर, देख लेता है क्या 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 आ रहा है. अच्छा, इसको ये बीमारी होने वाली है, फटाफट एडमिट करो, इसको ICU में लेके जाओ, कभी भी इसको हार्ट अटैक आ सकता है, इसको बचाना पड़ेगा. पता चला. फिर मेगालोब्लास्टिक एनीमिया 50 टाइम्स अपर लिमिट ऑफ LDH1 एंड LDH2. तो कंसंट्रेशन जो होती है LDH1 और LDH2 की मेगालोब्लास्टिक के अंदर 50 गुना बढ़ जाती है. तो डॉक्टर कंफर्म कर लेता है कि हाँ इसको है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, उसका फिर उसके हिसाब से उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देता है. फिर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी. मस्कुलर डिस्ट्रॉफी मतलब होता है एक किसी इंसान के अंदर उसकी मसल्स नहीं बनने लगती है, वो मसल्स बहुत वीक हो जाती है. किसी के देखना, किसी के पैर बहुत पतले होते हैं, ऐसे नहीं जो खाता पीता आदमी बहुत अच्छे से खा पी रहा है लेकिन उसकी तभी मसल्स ग्रो नहीं करती है. तो वो क्यों होता है, वो एक प्रॉब्लम होती है जिसको बोलते हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी. उसके अंदर LDH5 बढ़ा हुआ मिलेगा. ऐसे करते करते बहुत सारी चीजें हैं जिसके अंदर ये काम आते हैं. ल्यूकेमिया के अंदर LDH2 बढ़ा हुआ मिलता है, LDH3 होता है. मैलिग्नेंसी मींस नथिंग बट योर कैंसर. इन दिस केस योर LDH3 विल बी मोर. देन हॉप्किंस डिजीज, जर्म ट्यूमर्स, देन यूरिनरी जो यूरिनरी इन्फेक्शंस होते हैं, यूरिनरी प्रॉब्लम्स होती है, उसमें LDH3 जो होता है वो बढ़ा हुआ मिलता है 6 टाइम्स नॉर्मल से, जिसके अंदर क्रॉनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, देन सिस्टेमिक लूपस एंथ्रोमेटोसिस है, देन डायबिटीज, नेफ्रोस्क्लेरोसिस है, ब्लैडर एंड किडनी मैलिग्नेंसी. ये सारी प्रॉब्लम्स इसके अंदर LDH6 होता है. फिर इन CSF मतलब ये तो हुआ ब्लड की बात. अब बात करते हैं CSF के अंदर, मतलब सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, मतलब जो आपकी ब्रेन की जो बाहर की खोपड़ी है, मतलब जो स्कल होता है, स्कल के और ब्रेन के बीच में एक फ्लूइड भरा हुआ होता है, उसके अंदर भी बढ़ जाता है. कैसे, अगर मान लो किसी पर्सन को बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है, मेनिंजाइटिस एक बीमारी है जिसके अंदर ब्रेन की जो ऊपर की लाइनिंग होती है वो बढ़ जाती है, तो बुखार 103 104 तक आता है, 105 भी बढ़ रहा है, माथा फट जाता है, इतना तेज सर दुखता है. ठीक है, मेनिंजाइटिस बहुत लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज और बहुत पेनफुल रहता है, पेशेंट बहुत तकलीफ में होता है उसमें. ठीक है, तो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के अंदर LDH4 LDH5 बढ़ा हुआ होता है. वायरल मेनिंजाइटिस ऐसे बता रखा है किस किस के अंदर. वायरल मेनिंजाइटिस के अंदर LDH1 बढ़ा हुआ होता है. मेनिस्टेटिक ट्यूमर्स के अंदर LDH5 बढ़ा हुआ होता है. Whereas in the neonatal cases of intracranial hemorrhage associated with seizures and then hypothalamus. मतलब neonatal cases का मतलब होता है, neonatal मतलब बच्चा, नियोनेटल का मतलब होता है स्मॉल चाइल्ड, बिल्कुल छोटा बच्चा, स्मॉल चाइल्ड जो तो 2 साल या 3 साल का होता है, स्मॉल चाइल्ड को नियोनेटल केसेस बोलते हैं. मतलब छोटे बच्चों के अंदर जो प्रॉब्लम्स आती है उसके अंदर भी ये बढ़े मिलती है. तो आते हैं सेकंड आइसो एंजाइम्स के लिए. जो आपका दूसरा आइसो एंजाइम है वो है आपका
creatine phosphatase, creatine phosphokinase. I'll just go little bit fast now. इसकी सारी इंफॉर्मेशन दे रही है कि इसको क्या देती है. इसका नाम दे रखा है EC2732. ये एक डायमेट्रिक एंजाइम है. इसका मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है 82 किलो डाल्टन्स के अंदर है. इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है 40 to 60 IU/L रहती है. अगर इस ग्राफ में देखो तो ये क्रिएटिन फॉस्फेटेज जो होता है सीरम में नहीं होता, मतलब ब्लड में कम मिलेगा. इसकी ब्लड में प्रेजेंस कम रहती है. इसकी देखो कॉन्सेंट्रेशन कहाँ बढ़ती चली जाती है. सबसे ज्यादा जो होता है स्केलेटल मसल्स में मिलता है क्रिएटिन फॉस्फोकाइनेज. ये एंजाइम जो है ये आपको कहाँ मिलेगा, स्केलेटल मसल्स में ज्यादा मिलेगा, फिर हार्ट में मिलेगा, उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर्स में मिलेगा, इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में मिलेगा, दिमाग में ब्रेन में मिलेगा, यूट्रस के अंदर मिलेगा, आपको लंग के अंदर मिलता है. ठीक है, सीरम में नहीं मिलेगा. मतलब ब्लड में इसके एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन अगर डिटेक्ट करोगे तो आपको कम बहुत बहुत माइन्यूट मिलेगी, नहीं मिलता है जनरली. ठीक है, ये एंजाइम क्या करता है, ये क्रिएटिन जो फॉस्फोकाइनेज है वो क्या करता है, क्रिएटिन और एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट को ये इस रिएक्शन को कैटालाइज करता है. ठीक है, अब इसका एंजाइम जो है वो अनस्टेबल होता है सीरम के अंदर. सीरम में मतलब ब्लड में नहीं मिलता है ज्यादातर. इसके दो फॉर्म है, बी फॉर्म एंड एम फॉर्म. ठीक है, जो ब्रेन और मसल्स में होते हैं. अब इसके देखो इसमें टोटल कितने दिए, 3 आइसो एंजाइम दिए गए. CK1 क्रिएटिन काइनेज 1 मूविंग होता है, देन क्रिएटिनिन काइनेज 2 एंड क्रिएटिनिन काइनेज 3 जो स्लो मूविंग होता है. कहाँ होते हैं, इसमें इसकी पोजीशन बता रही है कि कहाँ किस केस में बड़े हुए होते हैं. CK1 जो होता है CNS डिजीज के अंदर, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो दिमाग से रिलेटेड जो नर्वस सिस्टम है उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो CK1 बढ़ा हुआ मिलता है. और वहीं एक्यूट मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन, मतलब हार्ट में अगर कोई हार्ट अटैक आने वाला है एकदम से, तभी इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ी हुई मिलेगी एंजाइम से. ओके, ये देखो ये होता है आपका इलेक्ट्रोफोरेटिक प्लेट. इलेक्ट्रोफोरेटिक प्लेट कैसी होती है देखो, इलेक्ट्रोफोरेटिक प्लेट ऐसी दिखती है. देखो ये प्लेट है, यहाँ पर ये ऐसे मार्क ये दौड़ लगाना स्टार्ट करते हैं. देखो ये तीनों फॉर्म में CK3 जो होता है सबसे पीछे रह जाता है, CK2 बीच में, CK1 फास्ट में आ जाता है, सबसे आगे निकल जाता है. ठीक है, ये जब इसमें इस प्लेट के आगे पीछे, यहाँ देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से भागना स्टार्ट करते हैं. भागना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे एरो दिखा रहा है ना कैसे भागने दौड़ते हैं ऊपर की तरफ. तो CK3 जो पीछे रह जाता है, CK2 देन फॉलोड बाय CK1. देन इसकी और फॉर्म्स पता चली है. फोर्थ फॉर्म और है जो सीवियर इलनेस के अंदर पता गया है. मैलिग्नेंट ट्यूमर जो होते हैं, जो कैंसर केस कॉजिंग जो होते हैं, कैंसर के अंदर भी मिलते हैं. क्लिनिकल सिग्निफिकेंस कहाँ का है, CK1 इज एलिवेटेड, वेरी लो बर्थ वेट के अंदर न्यूबॉर्न होते हैं, जैसे जो बच्चा जो होता है इसका वजन बहुत कम है तो उसमें CK1 बढ़ा हुआ मिलेगा. ब्रेन डैमेज इन द न्यूनेटेस, जो बच्चा होता है उसके दिमाग में कुछ उसके डैमेज हुआ हो तो उसके केस में मिलता है. न्यूरोलॉजिकल इंजरीज के अंदर मिलता है. ठीक है, न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट्स के अंदर मिलता है. और कहाँ मिलता है, एडिनोकार्सिनोमा ऑफ GI ट्रैक्ट, मतलब आपकी जो GI ट्रैक्ट के अंदर कहीं कैंसर हो गया हो, या कार्सिनोमा ऑफ लंग्स के अंदर मिलता है. तो ये सारे इसके केसेस रहते हैं. CK2 किस में मिलता है, मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन में मिलता है, आपको हेड इंजरीज में मिलता है. एलिवेटेड CK किस में मिलता है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज में मिलता है या मायोपैथीज में मिलता है. फिर आता है लास्ट जो है आपका, वो है एल्केन फॉस्फेटेज. इसका सारी देरी की, इसका नंबर क्या है, EC3131. इसका नाम क्या है, ऑर्थोफॉस्फोकाइनेज मोनोइस्टर फॉस्फोड हाइड्रोलेज. ये कहाँ मिलता है, म्यूकोसा ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुलेंस, बोन्स, लिवर्स एंड प्लासेंटा, इस समय मिलता है. इसके एंजाइम्स कौन कौन से हैं इसमें ये दे रखे हैं. इसके आइसो एंजाइम्स किस किस फॉर्म के अंदर है, इसके किस किस में काम आता है ये. इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस किसके अंदर है, देखो हेपेटिक कार्सिनोमा के अंदर है, हेपेटिक मेस्टासिस में है, देन पिगेट डिजीज के अंदर आता है, बोन कैंसर में आता है, हीलिंग ऑफ बोन फ्रैक्चर्स में पता चलता है अगर हील हो रहा है नहीं हो रहा है आपका बोन जो फ्रैक्चर हुआ है. सारे इसमें हाइपर पैराथायरॉइडिज्म के अंदर पड़ा हुआ मिलता है. ठीक है, फिर आते हैं एसिड फॉस्फेटेज. ये चौथा आइसो एंजाइम है जिसका नाम, इसका नंबरिंग यहाँ पे दे रखा है जो एंजाइम क्लासिफिकेशन में 3132 से है. इसका नाम क्या है, हाइड्रोलेज फॉस्फेटेज एस्टर, जो PS317 इसमें काम करता है. ये सब दे रखा है. आइसो एंजाइम बता रखे हैं, इसे क्लिनिकल एडमिनिस्ट्रेशन बता रखे हैं.
कहाँ मिलता है, ये इसके बारे में सारी डिटेल वेरी की है, किस किस चीज़ में मिलता है ये टू बेटा then monitor prostate, then titrate resistant ACP, increases in pegylated disease and the bone cancer, markers of bone disease, increase in giant cell, tumors of bone, normal growing children's like Gletcher's disease etc. तो ये सब आप लोगों ने आज आईसो एग्जाम्स को पढ़ा, टोटल 4 पढ़ाए गए आज, 4 आईसो एग्जाम्स के बारे में ही पढ़ना है तो बहुत सारे, लेकिन आपको इन चारों को बारे में पढ़ना है। आईसो एग्जाम होता क्या वो पता होना चाहिए, प्रॉपर्टीज क्या होती है एंजाइम्स की, और हमने टोटल 4 ये देखो लैक्टोडिहाइड्रोजिनेस के बारे में पढ़ा, केराटिनिन फॉस्फोकाइनेज के बारे में पढ़ा, देन हमने एल्कलाइन फॉस्फेटेज के बारे में पढ़ा एंड एसिड फॉस्फेटेज के बारे में पढ़ा, टोटल 4 पढ़ा। उसके टाइप्स पढ़े, कौन कौन से टाइप्स होते हैं, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस मतलब इसकी कहाँ होती है। तो बच्चों हर एंजाइम्स की आपको सारे फॉर्म पता होने चाहिए और एक एक पता होना चाहिए कि हाँ ये कहाँ पढ़ा हुआ मिलेगा, बस ज़्यादा डेप्थ में मत जाना। Now we will be seeing some of the MCQs which for this particular lecture. Okay, which of the following is not true for isoenzymes? Which of the following, like the statement which I mentioned below, which of them are not true? मतलब सही नहीं है, हमें पता करना जो सही नहीं है। पहला क्या है, many enzymes occur in several molecular forms called isoenzymes. Yes, बहुत सारे पढ़ाए कि बहुत सारे एंजाइम जो होते हैं वो डिफरेंट फॉर्म्स में मिलते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, आइसोएंजाइम्स। सही बात है, तो गलत बात नहीं है। Then different isoenzymes catalyze the same chemical reaction but differ in their primary structure and kinetic property. True, ये भी एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी। Isoenzymes are coded by different enzymes. Yes, true. Enzymes having other sites. आइसोएंजाइम्स के अदर साइट्स नहीं होती, एंजाइम ही थोड़ा अलग होता है, किसी नॉर्मल एंजाइम के अदर साइट को ऐसा एंजाइम नहीं होता। आइसोएंजाइम्स एक नया ही एंजाइम होता है, ठीक है। तो डी गलत आंसर। Which of the following is not true for isoenzymes? अगले एक और बोला गया है, regulation specific to distinct tissues and development stage. Yes, हार्ट का एक पढ़ाया था, lactate dehydrogenase का। Distinctive properties and patterns of metabolism to particular organism. Yes. Then fine tuning of metabolism, नहीं fine tuning नहीं है ये, metabolism fine tune नहीं कर रहा है ये, तो उसका काम ही वही है। Regulatory metabolism are called effectors or modulator or modifiers. Yes, ये इसका आंसर है। मतलब ये जो है ये गलत है कि ये रेगुलेटरी मेटाबॉलिक आर कॉल्ड इफेक्टर्स और मॉड्यूलेटर और मॉडिफायर्स, नहीं, ये गलत बात है। रेगुलेटरी मेटाबॉलाइट्स नहीं बोलते इसको कुछ, ये गलत स्टेटमेंट है। मल्टीपल फॉर्म ऑफ सेफ एंजाइम्स इज रेफर्ड एज, अभी पढ़ाया है एंजाइम्स की मल्टीपल फॉर्म हो तो उसको क्या बोलेंगे, आइसो एंजाइम्स। Which of the following is not shown by the isoenzyme? कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज है जो आइसोएंजाइम्स में बताता है। इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी बताया है, हाँ होती है, फास्ट एंड स्लो, ये प्रॉपर्टी तो शो करता है। फिर काइनेटिक प्रॉपर्टीज होती है, हेक्सोकाइनेज ग्लूकोकाइनेज का एग्जांपल बताया था। देन एसिड कंपोजिशन होता है, लेकिन ये कौन सी प्रॉपर्टी शो नहीं करता, ये सिग्नोमोडाइल शेप कर्व, ये गलत आंसर है, ये हमने देखा ही नहीं है और ना हम जानते इसके बारे में, ये गलत आंसर है। Which of the following is false for lactate dehydrogenase? देखो बच्चों, जब भी एमसीक्यू करते हैं ना, तो उसमें आपको जो कभी कभार आंसर नहीं पता होता है, तो ऑटोमेटिक क्या होता है, आप गलत आंसर को भी एलिमिनेट करते चले जाते, तो अल्टीमेटली आपको फाइनल सही आंसर भी मिल जाता है। आपको जो नॉलेज होती है ना उसको यूज करो, ठीक है, उससे आपको पता चल जाता है। अब ये क्या कह रहा है देखो, Which of the following is false? गलत है फॉर लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस। अभी आपने लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस के बारे में आपने क्या पढ़ा है, पहला तो ये टेट्रामेरिक एंजाइम है, तो ये ऑटोमेटिक एलिमिनेट हो गया। फिर बोला इट हैज अ 5 एंजाइम, मैंने बताया था 5 ऐसे एंजाइम होते हैं, LDH 1 2 3 4 5, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। इट इज मेड अप ऑफ 2 पॉलीपेप्टाइड, ये भी हाँ ये 2 पॉलीपेप्टाइड का बना हुआ होता है, और तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर निकल के आ गया कि बी होगा। क्या है, इट कैटलाइजेस रिवर्सिबल फॉस्फोराइलेशन ऑफ क्रिएटिनिन टू क्रिएटिनिन फॉस्फेट बाय एटीपी। अरे ये तो गलत है, हमने तो लैक्टेट एंड पायरुवेट क्या पढ़ाते थे, ये क्रिएटिनिन की बात कर रहा है, तो ये एलडीएस थोड़ी काम करता है क्रिएटिनिन के ऊपर है, ये व्हाट एलडीएच किस पे काम करता है, पायरुवेट को लैक्टेट पे कन्वर्ट करता है और लैक्टेट को पायरुवेट में कर देता है ऑटोमेटिकली। अगर आपको नहीं पता था ये बात, तब भी आप पता आंसर निकाल सकते हैं कि टेट्रामेरिक एंजाइम होता है, पहला हटा दो, क्योंकि हमें फॉल्स पता करना है, गलत जो बात गलत है, लेकिन ये बात गलत नहीं है एलडीएच की, ये तो सही बात है, टेट्रामेरिक एंजाइम होता है, 5 आइसोमर होते हैं, 2 पॉलीपेप्टाइड से बचा कौन सा, बी आंसर। ओके, एन इंक्रीज in the serum level of LDH related to LDH2 is an indication of what? LDH1 जब बढ़ता है, मैंने बताया था ना LDH1 किस केस में बढ़ता है,
मायोकार्डियल इन्फेक्शन, दिल का दौरा पड़ने के लिए। तो आंसर क्या है? मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में नहीं बढ़ता है, ल्यूकेमिया में नहीं बढ़ता है, हेपेटाइटिस विद जॉन्डिस में नहीं बढ़ता है, किस में बढ़ता है? मायोकार्डियल इन्फेक्शन। Which of the following is not associated with the increase of LDH activity in the urine? ये बोल रहा है इसमें से पता करो कि कौन सी बीमारी जो है एसोसिएटेड नहीं है, LDH बढ़ गया अगर यूरिन के अंदर, तो ये इस बीमारी से इसका लेना देना नहीं है। क्या क्या है? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, पता नहीं। क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेटिस, हाँ ये तो होता ही है। डायबिटिस नेफ्रोसिस, हाँ। किडनी मैलिग्नेंसी, हाँ। लेकिन कौन सा है जो एसोसिएट नहीं है? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया पढ़ाया तो था, पीछे चलूं? देखो एलडीएच जो होता है किसमें, इसमें होता है। देखो क्रोनिक ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस में बढ़ावा मिलेगा। सिम्प्टेटिक ल्यूकस एरिथेमेटोसिस में मिलेगा। देन डायबिटिक नेफ्रोस्क्लेरोसिस में मिलेगा। ब्लैडर में किडनी मैलिग्नेंसी में मिलेगा। तो इसका आंसर क्या है? ये तो आएगा लास्ट वाला। मैकुलोब्लास्टिक एनीमिया का कोई लेना देना नहीं है यूरिन के अंदर बढ़ावा। हम तो सारा एनीमिया की बात कर रहे हैं यहाँ पे, और नीचे सारी जो बीमारियां हैं वो सारी हम पढ़ के आए पीछे से। एनीमिया का लेना देना ही नहीं है यूरिन के अंदर। अगर यूरिन के अंदर एलडीएच बढ़ रहा है, इसका हम एनीमिया से कोई कोरिलेशन नहीं निकालते। LDH4 एंड LDH5 जो होता है बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, तो किसमें ये अगर ये बढ़ावा होता है, अगर LDH4 एंड LDH5 बढ़ा हुआ है तो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस कहलाया जाता है। वहीं LDH1 एंड LDH3 बढ़ा हुआ हो तो किसमें होगा? वायरल मेनिंजाइटिस में बढ़ावा मिलेगा। ठीक है। फिर which of the following is not an isoenzyme form of alkyl phosphatase? ठीक है, कौन सा नहीं है? मसल्स वाला alkaline phosphatase। Which of the following is not an clinical application of creatine kinase isoenzyme? कौन सा है जिसका क्रिएटिनिन का आइसोकाइनेज से रिलेटेड नहीं है? डैमेज ऑफ हार्ट टिश्यू से रिलेटेड नहीं है। Then head injury can be detected by what? दिल में अगर दिमाग में इंजरी हो जाए तो अगर इंक्रीज इन CK1 बढ़ा हुआ है, मतलब ये है कि दिमाग के अंदर इंजरी हुई है। अगर CK1 जो आइसोएंजाइम है अगर CSF में बढ़ा हुआ है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में बढ़ा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये हेड इंजरी हुई है उसको। ठीक है। तो these all things we have studied about isoenzymes। कि आइसोएंजाइम होता क्या है, इसका काम क्या है, इसके कहाँ का एप्लीकेशंस हैं, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। So just to remind you again, this particular isoenzymes, they are nothing but they are the multiple form of enzymes which perform the same catalytic reactions. Okay, we have studied about 4 different isoenzymes. We have studied their chemical, what are the different forms, and in what clinical, like in what clinical problems isoenzymes will increase. So ये एक तरह का डायग्नोस्टिक एप्लीकेशंस में भी काम आता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था फॉर योर लाइक फॉर व्हेन यू कंपेयर विद योर एंजाइम्स टॉपिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है व्हिच नीड टू बी गेट कवर्ड। So these are the references बच्चों। Okay, so this is all about your isoenzymes we have studied today. The next class will be studying about some new topics. Okay.